ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے کراچی کی قیمتی سرکاری اراضی پر 62 سیاسی شخصیات کی نظریں ہیں۔ ڈی سی ملیر آفس سے متصل قیمتی اراضی کی خلاف ضابطہ الاٹمنٹ، صوبائی وزراء کے دست راست اقبال ساندھ مبینہ قبضے میں ملوث نکلے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے پیپلز پارٹی ضلع شرکی کے صدر اقبال ساندھ پر نوازشیں، ضلع ملیر کے عہدیدار برہم، ضلع ملیر کے منتخب نمائندوں کا وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو خط، مذکورہ قیمتی اراضی پر عوام کے لیے فوری ٹراما سینٹر بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز صدر الدین شیخ۔ جی صدر الدین شیخ، اپڈیٹ کیجئے گا۔ ضلع ملیر کے علاقے واقع قائد آباد میں ملیر کے منتخب نمائندوں کی جانب سے وزیر اعلیٰ سندھ کو ایک خط لکھا گیا ہے، جس میں منتخب نمائندگان نے یہ کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر ملیر کے آفس کے متصل قائد آباد مین چورنگی پر جو 1400 گز سرکاری زمین کچھ دن پہلے واگزار کروایا گیا تھا، وہاں پہ ضلع ملیر کے عوام کے لیے ٹراما سینٹر بنایا جائے، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس 1400 گز زمین پر ڈسٹرکٹ ایسٹ کے جو پاکستان پیپل پارٹی کے صدر ہے اقبال ساندھ، اس کی نظر ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ کراچی جو کے ایم سی میٹروپولیٹن ہے، اس کی کچی آبادی سے میں نے اس کو الاٹ کروایا ہے اور یہ میری زمین ہے، جبکہ ذرائع کے مطابق یہ جو 1400 گز کا جو پلاٹ ہے وہ تقریباً 20 کروڑ سے زائد کی مالیت بتائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہماری ڈپٹی کمشنر کے جو ذرائع سے بات ہوئی، اس نے کہا ہے کہ کچھ دن پہلے اینٹی انکروچمنٹ کے ہمارا اسسٹنٹ کمشنر نے یہ 1400 گز کا جو پلاٹ تھا سرکاری، اس کو واگزار کروایا گیا تھا، جس میں اقبال ساندھ نے ڈیوٹی اٹکا بھی کیا تھا اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ، اس نے گتم گتا بھی کی تھی، ایس ایچ او شاہ لطیف جو اس وقت تھے شاہ لطیف کے، اس کے ساتھ گتم گتا بھی کی تھی، اس کو کہا تھا کہ یہ پلاٹ میرا ہے، اس پر مشینری کے آگے بھی وہ آئے تھے ایکسیویٹر مشین کے سامنے، لیکن اقبال صاحب نے ایک خط لکھا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کو، اس میں انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف، مختار کار کے خلاف، اینٹی انکروچمنٹ فورس اور شاہ لطیف تھانے کے خلاف ایک خط لکھا ہے، اس میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ 1400 گز کا جو پلاٹ ہے یہ اس کی ملکیت ہے، جبکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ کے ایم سی کا قائد آباد کے اور ریونیو کے لینڈ کے ساتھ کیا واسطہ، یہ جو الاٹمنٹ ہے یہ مبینہ ہے، یہ شکی ہے، اور یہاں پہ کے ایم سی کا کوئی بھی الاٹمنٹ یہاں پہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اقبال ساندھ پاکستان پیپل پارٹی شرکی کے صدر ہے، اس نے اپنا سیاسی اثر رسوخ استعمال کر کے ملیر ضلع میں جو اپنی پنجے جمانے کے لیے یہ زمین ہتھیا لی ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ 1400 گز جو 20 کروڑ سے زائد کا پلاٹ ہے، اس پر اس نے دعویٰ بول دیا ہے، اس نے وہاں پہ ایک الاٹمنٹ دکھائی ہے جس کو اسسٹنٹ کمشنر نے رد کیا، اس نے کہا کہ یہ الاٹمنٹ جعلی ہے، جبکہ یہ زمین سرکاری ہے، سرکاری زمین پہ کے ایم سی کا یہاں پہ کیا واسطہ، جب یہ ریونیو کی زمین ہے، کے ایم سی کا یہاں پہ جو دعویٰ ہے وہ جھوٹا ہے، اور جو الاٹمنٹ دکھا رہے اقبال ساندھ یہ بالکل بوگس ہے اور جعلی ہے۔ اس کے بعد اس نے اسسٹنٹ کمشنر نے بھاری مشینری اور پولیس نفری کے ہمراہ کچھ روز پہلے وہ 1400 گز کا پلاٹ واگزار کروایا۔ میں آپ کو بتاؤں یہاں پر کراچی کا جو ضلع ملیر ہے وہ گولڈن زمین ہے، یہاں پر سب کی سیاسی جماعتوں کی یہاں پہ نظریں ہوتی ہے، جو لینڈ مافیا کے سرگنا ہوتے ہیں، مبینہ جو بھی یہاں پہ لینڈ گریبنگ کرتے ہیں، جو مختلف سیاسی سماجی مختلف ادوار میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملیر کی جو زمین ہے وہ گولڈن ہے اور یہ سونے کی کھان ہے۔ یہاں پہ اکثر بیشتر جو بھی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ یہاں پہ اپنے پنجے گاڑنے کے لیے سرکاری زمین پر ہتھیانے کی کوشش کرتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں ٹراما سینٹر کے لیے ملیر کے مختلف جو نمائندگان ہیں، جس میں ایم این اے ایم پی ہے، انہوں نے خط میں کلیئر لکھا ہے کہ یہ جو 1400 گز واگزار کروائی گئی ہے اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے، اس کو ٹراما سینٹر یہاں پہ بنایا جائے، جبکہ وہاں پہ اکمال صاحب کی یہ دعویٰ ہے کہ یہ زمین یہ 1400 گز کا جو ٹکڑا ہے وہ اس کا ہے، جو 20 کروڑ سے زائد مالیت کی پراپرٹی بتائی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ صدر الدین شیخ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کراچی میں سرکاری اراضی ہڑپ کرنے کا سلسلہ بند نہ ہو سکا، سیاسی جماعتوں کے سرکردہ رہنماؤں کی مبینہ سرپرستی میں شہر قائد کی سرکاری اراضی ہتھیانے کا ایک اور منصوبہ بے نقاب۔
डिप्टी कमिश्नर जिला मलीर ऑफिस से मुत्तसिल 1500 गज कीमती अराजी गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ। पीपल्स पार्टी जिला शर्की के सदर इकबाल सांद को नवाजने के लिए जिला मलीर इंतजामिया ने खिलाफ ज़ाब्ता कीमती अराजी मुंतकिल करने में मुकम्मल मुआवनत की। कीमती सरकारी अराजी खिलाफ ज़ाब्ता मुंतकिल होने के बाद 4 दीवारी तामीर कर दी गई। शहरी हलकों की तशवीश के बाद जिले इंतजामिया और एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस ने अपनी ही मुबैना सरपरस्ती में होने वाले कब्जा वागुजार कराने के लिए नुमाइशी कार्रवाई करके 4 दीवारी मस्मार कर दी। जिला शर्की के सदर इकबाल सांद को खिलाफ ज़ाब्ता नवाजने पर पीपल्स पार्टी जिला मलीर के ओहदेदारान भी फट पड़े। जिला मलीर के मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को खत लिखकर मज़कूरा अराजी पर अवाम के लिए ट्रॉमा सेंटर बनाने का मुतालबा कर दिया। कराची की बकिया मानदा कीमती सरकारी जमीनें हथियाने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों और हुकूमती शख्सियात के मंजूर नजर रहनुमा सरकर्दा दिखाई देते हैं। ताहम खिलाफ ज़ाब्ता इक़दामात में ज़िले इंतजामिया, महकमा कच्ची आबादी, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस की पुरस्रार खामोशी और हर मुमकिन मुआवनत कई सवालात को जन्म दे रही है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में वाटर माफिया के खिलाफ वाटर बोर्ड का भरपूर ग्रैंड ऑपरेशन। एंटी थीफ्ट सेल की लियारी एक्सप्रेस वे के अतराफ कार्रवाई। गैर कानूनी पानी के मुतअद्दिद कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं पानी माफिया अवाम का लाखों गैलन पानी चोरी करके इंडस्ट्रीज को बेचता है। ऑपरेशन का मकसद अवाम के हक का पानी अवाम तक पहुँचाना है। कराची में वाटर माफिया के खिलाफ वाटर बोर्ड का ग्रैंड ऑपरेशन एंटी थीफ्ट सेल की लियारी एक्सप्रेस वे के अतराफ कार्रवाई। गैर कानूनी पानी के मुतअद्दिद कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं पानी माफिया अवाम का लाखों गैलन पानी चोरी करके इंडस्ट्रीज को बेचता है। ऑपरेशन का मकसद अवाम के हक का पानी अवाम तक पहुँचाना है। एंटी थेफ्ट सेल के इंचार्ज राशिद सिद्दीकी की सरबराही में लियारी एक्सप्रेस के अतराफ में चोरी की लाइनों पर कार्रवाई जारी है। एंटी थेफ्ट सेल ने रेक्सर के इलाके में गैर कानूनी वाटर कनेक्शन काट दिए। इस मौके पर सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी अहकामात पर ऑपरेशन किया जा रहा है। माफिया आवाम का लाखों गैलन पानी चोरी करके इंडस्ट्रीज को बेचता है। लियारी की आवाम को सप्लाई किया जाने वाला पानी भी माफिया बेच रही थी। उनका कहना था कि ऑपरेशन का मकसद आवाम के हक का पानी आवाम तक पहुँचाना है। शहर में पानी की मुनसिफाना तकसीम और पानी के मसाइल हल करना वाटर बोर्ड की बुनियादी जिम्मेदारी है। इस तरह साइंटिफिक तौर पर और टेक्निकली तौर पर ये चोरी की जा रही है, तो कितना नीचे जाके जो हमारी असल पानी की लाइन है उसमें ये बड़ी एक लाइन मिला के और ये चोरी हो रही है, जो पानी सप्लाई हो रहा है। तो ये एक जगह नहीं है, ये आइडेंटिफाई और भी हुई हैं। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आती थी, तो इस दफ़ा चीफ मिनिस्टर साहब ने स्पेशली तौर पर पुलिस चीफ से भी कहा और फिर हमने रेंजर से भी कहा, तो ये ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे। और इंशाल्लाह जो पानी चोरी हो रहा था वो मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा और जो जो लोग इसमें मुलविस हैं उन पर सख्त एक्शन होगा। और इस वजह से कराची के लोगों का जो पानी था जो चोरी हो रहा था और वो तकालीफ में थे, ख़ास तौर पर आज अगर हम बात करें तो ये इस सेक्शन के बाद लियारी और इसके करीब जवार में जो पानी है उसमें बेहतरी आएगी। सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने एंटी थेफ्ट सेल को हिदायत की कि शहर भर से पानी की चोरी का अमल रोका जाए और मुख्तलिफ इलाकों से गुजरने वाली लाइनों से पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज की जाएं। गैर कानूनी पानी के कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाइयाँ रोजाना की बुनियाद पर जारी रखी जाएं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जुल्फिकाराबाद ऑयल टर्मिनल का मामला चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह की ज़ेर सदारत तमाम स्टेक होल्डर्स का इजलास। दुकान और वर्कशॉप की अलॉटमेंट 3 रोज़ में जारी किए जाएं। चीफ सेक्रेटरी सिंध की एडमिनिस्ट्रेटर KMC को हिदायत। कहते हैं जुल्फिकाराबाद ऑयल टर्मिनल अहम मनसूबा है, सिंध हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। जुल्फिकाराबाद ऑयल टर्मिनल का मामला चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह की ज़ेर सदारत तमाम स्टेक होल्डर्स का इजलास। दुकान और वर्कशॉप की अलॉटमेंट 3 रोज में जारी किए जाएं। चीफ सेक्रेटरी सिंध की एडमिनिस्ट्रेटर KMC को हिदायत। कहते हैं जुल्फिकाराबाद ऑयल टर्मिनल अहम मंसूबा है, सिंध हुकूमत की तरजीहात में शामिल है।
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی کو حقوق دو تحریک دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا ہے. 27 مئی کو ایکسپو سینٹر سے کراچی پریس کلب تک ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کی متعصبانہ پالیسی اور سرکاری نوکریوں میں کراچی کے نوجوانوں کو نظر انداز کیے جانے پر سخت رد عمل دیا جائے گا. کراچی کو حقوق دو تحریک دوسرے مرحلے میں داخل, ایم کیو ایم پاکستان کا سڑکوں پر آنے کا اعلان. 27 مئی کو ایکسپو سینٹر سے کراچی پریس کلب تک ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کی متعصبانہ پالیسی اور سرکاری نوکریوں میں کراچی کے نوجوانوں کو نظر انداز کیے جانے پر سخت رد عمل دیا جائے گا. شامل کریں گے مزید خبریں لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ سمندری طوفان کے اثرات, کراچی میں گرد و غبار کے طوفان کے ساتھ بارش. آپ کو بتائیں کہ گرمی کا زور ٹوٹ گیا, مختلف علاقوں میں بارش. محکمہ موسمیات نے گرمی کی شدت میں کمی کی نوید سنا دی. ڈائریکٹر میٹ سردار سرفراز کہتے ہیں کہ کراچی میں تیز بارش کا کوئی امکان نہیں. کراچی میں گرمی کی شدت میں آج سے کمی آ جائے گی. کراچی میں موسم کی منطق نرالی. پہلے سمندری طوفان تاؤتے نے خوب ڈرایا, لیکن پھر کراچی سے رخ موڑا تو سمندری ہوائیں بھی ساتھ لے گیا. تینوں دن پارا 40 کا ہنسا عبور کر گیا. ہر کوئی ہائے گرمی کی دہائیاں دیتا رہا. ایسی ٹائٹ گرمی ہو رہی ہے. سورج نے خوب تیور چڑھایا, شہریوں کا خوب پسینہ بہایا تو بادلوں کو بھی جوش آیا. شہر کے موسم میں ڈرامائی موڑ آیا. ساکن ہوائیں ایک دم اٹھیں اور پورے شہر کو لپیٹ میں لے لیا. مٹی کا طوفان ایسا آیا کہ جو جہاں تھا وہیں تھم گیا. تیز آندھی نے بہت سے درخت گرائے, پھر ہلکی بارش نے موسم خوشگوار کر دیا. درجہ حرارت کم ہوا تو گرمی سے مرجھائے شہری بھی کھل اٹھے. چیف میٹرولوجسٹ ڈاکٹر سرفراز نے بتایا کہ گرمی کی شدت اور تاؤتے کے زیر اثر تھنڈر سیلز بنے اور شمال مشرق سے ہوائیں چلیں. کل سے موسم بھی بہتر ہوگا, درجہ حرارت بھی کم ہوگا. احمد رزاق, میٹرو ون نیوز, کراچی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات نے کراچی کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے. مسرور بیس میں 7.3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. سرجانی میں 5.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ. صدر میں 1.1 ملی میٹر. ناظم آباد میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی. نارتھ کراچی, ناظم آباد, بہادر آباد, گلشن اقبال, گلستان جوہر, کارساز, شاہراہ فیصل, ٹاور میں بھی بوندا باندی ہوئی. بلا آخر شہر قائد میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا. کراچی میں 2 روز شدید دھوپ اور ہیٹ اسٹروک کے بعد تیز ہواؤں اور بارش نے شہریوں کے دل جیت لیے. مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش نے شہر کا موسم خوشگوار کر دیا. موسم تبدیل ہونے پر کراچی کے شہریوں نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا کہ 2 دن سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ بارش ہو گئی. موسم سہانا ہو رہا ہے, اچھا ہو رہا ہے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور یہ بہت اچھا ہے, خوشگوار موسم ہے. اب جائیں گے تھوڑا فیملی کے ساتھ انجوائے کریں گے. موسم تو ماشاء اللہ سے بہت اچھا خوشگوار ہو گیا ہے. 2-3 دن سے جو گرمی چل رہی تھی, مطلب لو جیسی, ہوا بھی ایسی تھی گرم اور سینٹی گریڈ بھی, اب تھوڑا کمی آئی ہے اور اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ کے حکم سے کس طرح کا موسم ہوتا ہے. کچھ جگہوں پہ بارش ہوئی ہے, اچھی ہوئی ہے, باقی آندھی طوفان مٹی تو ہوئی ہے, مگر اب یہ ہے کہ خوشگوار کی طرف ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب یہ گرمی کا زور ٹوٹا ہے. نہیں, واقعی بہت اچھا موسم ہو گیا ہے. اندازہ نہیں تھا جب گھر سے باہر نکلے تھے تو بہت گرمی تھی. اب واپس گھر پہ جا رہے ہیں تو خوشگوار موسم میں جا رہے ہیں. نکلنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا باہر, لیکن ابھی فیل ہوا کہ اب نکلنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے, آج ہوا بھی چل رہی ہے, کئی مقامات پہ بارش بھی ہوئی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, موسم کافی حد تک بہتر ہو گیا اور اللہ کرے آئندہ بھی بہتر ہی رہے. واضح رہے کہ سمندری طوفان تاؤتے کے اثرات شہر قائد سمیت پاکستان میں بھی ظاہر ہونے لگے ہیں, جبکہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں تیز بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. سمندری طوفان اور گرمی کی شدت کے باعث بادل بنے. کیمرامین جنید اسلم کے ساتھ سید نعمان گل, میٹرو ون نیوز, کراچی. شہر قائد میں تیز بارش اور آندھی سے پارا گر گیا, جس کے ساتھ ہی کراچی کے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی, جبکہ سڑکوں پر ٹریفک جام ہو گیا اور مختلف حادثات میں 4 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے.
कराची के आई चंडीगढ़ रोड और किमाड़ी समेत कई मुकामात पर तेज बारिश हुई। सुरजानी टाउन, न्यू कराची और नॉर्थ कराची में तेज आंधी की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। लसबेला, हब, गडानी और गुर्दोनवा में भी रिम जिम बारिश बरसती रही। शहर में गर्द आलूद तेज आंधी और बारिश के सबब डब्बा कॉलोनी बल्दिया टाउन में छत गिरने से मर्द और खातून जाँ बहक हो गयी, जबकि बल्दिया टाउन नंबर 12 में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। शेरशाह मोहम्मदी रोड पर दीवार गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, जबकि आई चंडीगढ़ रोड पर यूबीएल इमारत का एक हिस्सा टूट गया। मुख्तलिफ मुकामात पर दरख्त जड़ से उखड़ गए, घरों की छतें उड़ गईं, जगह जगह केबल की तारें टूट कर बिखर गईं। हबीब बैंक साइड पर दरख्त गिरने से रोड बंद हो गया। बारिश के बाद कराची का बेशतर हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। 225 से ज्यादा फीडर ट्रिप हो गए। पीआईबी, सोहराब गोट, सफूरा, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, पीईसीएचएस, सदर आई चंडीगढ़ रोड, शाहफजल कॉलोनी, न्यू कराची, सुरजानी, एफबी एरिया, नाजमाबाद और रंगी टाउन में भी बिजली मुअत्तल है। कराची के इलाके राशिद मिन्हाज रोड पर शॉपिंग मॉल पर लगा बिलबोर्ड गिरने से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में राशिद मिन्हाज रोड के करीब वाक़े शॉपिंग मॉल का देव हेकल बिलबोर्ड शहरियों पर आ गिरा। बोर्ड के मलबे तले दब कर मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। शॉपिंग मॉल इंतजामिया का कहना है कि बिलबोर्ड गिरने से शॉपिंग आउटलेट के मुलाजमीन जख्मी हुए। याद रहे कि बिलबोर्ड सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी करार देकर कई मरतबा इन्हें हटाने का हुक्म दे चुकी है। इन फौलादी इश्तिहारी बिलबोर्ड्स को हटाने के लिए वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात और कमिश्नर कराची के अहकामात भी जारी किए जा चुके हैं, मगर मजाल है कि बल्दिया बस्ती के शोबा इश्तिहारात के अफसरान ने इन अहकामात पर अमल किया हो। केएमसी और डीएमसी ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के शहर के बिलबोर्ड हटाने के अहकामात हवा में उड़ा दिए। शहर में अक्सर मकामात पर अब भी बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगे नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि तूफानी तेज हवाओं की पेशगोई के बाद हुकूमत के ऐलान पर बिलबोर्ड हटाने के लिए अमली इकदामात नजर नहीं आ रहे। समुद्री तूफान की आमद और हुकूमत सिंध का अलर्ट जारी कर दिया गया। तेज हवाओं के चलने की पेशनगोई के बाद शहर से बड़े बड़े साइन बोर्ड हटाने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं, मगर शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर अब भी साइन बोर्ड लगे नजर आते हैं। बाज मकामात से इश्तहारात के पेनाफ्लेक्स तो हटा दिए गए, मगर बोर्ड अब भी इंसानी जानों के लिए खतरे का बाइस बने हुए हैं। भारी भरकम बिल बोर्ड्स के ये लोहे के एंगल यही तो गिरकर इंसानी जान के लिए खतरे का बाइस बनते हैं, जो कि जूं के तू नजर आते हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत सिर्फ ऐलान ना करे बल्कि खुद शहर का जायजा लेकर हमारी जानों के तहफ्फुज़ के लिए इन बिल बोर्ड्स को मुकम्मल हटवाए। जिस तरह हुकूमत ऐलान कर रही है कि तेज़ बारिशें और तेज़ हवाएं चलेंगी, तो पहले भी हमने देखा है कि इन्हीं बिल बोर्डों की वजह से काफ़ी नुकसानात हुए हैं, मोटरसाइकिल वालों के ऊपर ये गिरे हैं। तो अगर हुक्म जारी हुआ है तो ये उतारना चाहिए, लेकिन ये अभी तक तो शहर में ऐसे के ऐसे ही लगे हुए हैं। सिर्फ साइन बोर्ड हटें, इश्तिहारात हट गए, बिल बोर्ड ऐसे ही खड़े हैं। पिछले साल भी देखा होगा, जिसकी वजह से कई हादसा हुए, काफ़ी लोगों की जानें भी गई। हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ को फौरी से फौरी एक्शन लेके इसको फौरी हटाया जाए। बिल्कुल हटाया जाए, इनको हटाना चाहिए। बिल्कुल जानलेवा होते हैं बाइक वालों के लिए, मतलब खुली बाइक वालों के लिए तो ज़्यादा नुकसानदेह हैं। कुछ भी हो सकता है, लाजमी की बातें हटना चाहिए। ये लाजमी इसको हटाने की चाहिए और इनका ये फरीज़ा है। बड़ा नुकसान हो रहे हैं, बड़ा नुकसान है, जानों का खतरा है। गुज़श्ता साल भी तेज हवाओं और बारिशों के दौरान शहर में बिलबोर्ड्स गिरने से कीमती इंसानी जानें जाया हो चुकी हैं। कबल इस वक्त अमल दरामद कराकर शहरियों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। कराची के बरसाती नालों से कचरे की सफाई ना हो सकी और रंगी नाले में जगह जगह कचरे के बाइस पानी की रवानी मुतासिर होने लगी है। आपको बताएं कि बरसाती नालों की सफाई नहीं हो सकी है। कराची के बरसाती नालों से कचरे की सफाई ना हो सकी और रंगी नाले में जगह जगह कचरे के बाइस पानी की रवानी मुतासिर होने लगी है। शहर कायद में बरसात भी हो गई, मगर बरसाती नालों से कचरे की सफाई ना हो सकी। ये मनाजिर है कराची के बड़े नालों में शुमार होने वाले औरंगी नाले की, जहां नाले में जगह जगह कचरे और मिट्टी के सबब पानी की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। जहां तूफानी बारिशों के बाइस नाले का गंदा पानी इलाका मकीनों के घरों में भर जाता है। शहरी कहते हैं कि न जाने कहां से लोग आकर इस नाले में कचरा फेंक कर चले जाते हैं। बारिशों में हमारे घरों तक गंदा पानी आ जाता है। हुकूमत जल्द औरंगी नाले की सफाई का बंदोबस्त करवाए। ये तो साफ
साफ करने की ज़रूरत है। पीछे आप देख रहे हैं ऐसे हालत, लोग भी अब यहाँ पर कचरे फेंक रहे हैं। जो यहाँ से लोग गुजरते हैं, मतलब लेडी वाले और दुकानदार, ये भी सब यहाँ पर कचरा फेंकते हैं। सालों से सफाई नहीं हो रहा है। अगर तूफ़ानी बारिश आ गया तो ये सब पानी जो है फैल जाएगा गलियों में और रोडों में, जिससे लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना पड़ेगा। इससे पूछने वाला कोई नहीं है, इतने सालों से पड़ा हुआ है। पिछले बारिश में सारा हुआ था, पानी सारा ऊपर आया था, सारा घर सारा ख़राब किया था, पानी अंदर चला गया था घरों में। गवर्नमेंट को चाहिए सफाई करे, नाला साफ करे ताकि पानी जो है ना खुद के घरों में ना जाए आसपास। ये तो कई मतलब बारिश है जो है ना, ये पानी जो है नाला भर जाता है, कई मतलब ये घरों के अंदर घुस जाता है। वाज़ेह रहे कि कराची में गुज़िश्ता साल होने वाली तूफानी बारिशों के बाइस औरंगी नाला ओवरफ्लो हो गया था, जिसके बाद कई अरसे तक नाले का गंदा पानी इलाके की गलियों और शाहराहों पर मौजूद रहा था। औरंगी नाले में जल्द सफाई के इक़दाम न किए गए तो नताइज क्या होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। शहर कायद में तूफान की पेशगोई के बाद भी बरसाती नालों की सफाई ना हो सकी। गुजर नाले में मौजूद कचरा और मिट्टी के ढेर से पानी चोक होने लगा। कराची में तूफान की पेशगोई भी इंतजामिया को हरकत में ना ला सकी। सिंध हुकूमत के बुलंद-ओ-बांग दावे जमीनी हकाइक के बिल्कुल बरक्स निकले। ये मनासिर हैं शहर कायद के बरसाती गुजर नाले के, जहां कचरे और मिट्टी के ढेर पानी की रवानी को मुतासिर करने लगे, जबकि KMC, DMC और महकमा बल्दियात सिर्फ दावे करने में मसरूफ हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि ये सूरत हाल बहुत दिन से है, हुकूमत जल्द नोटिस ले। यहाँ ये है कि CM साहब ने इमरजेंसी नाफिज की थी 2-3 दिन पहले, और छुट्टियाँ भी ख़त्म कर दी थी। जो मिनिस्टर इससे लिंक है, जैसे शाह साहब को कहा था कि आप छुट्टियां ख़त्म करके पहुंच जाएं। इस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो चूना डिपो पे एक तरफ लियाकताबाद है, एक तरफ नाजमाबाद है। यहाँ भी थोड़ा सा इसमें ब्लॉकेज है, तो वज़ीर आला सिंध से और मिनिस्टर नासिर शाह से हम गुजारिश करेंगे कि इन नालों और जहाँ चौक हैं उनको देखा जाए। सबसे बड़ा जो इशू है वो ये कि जो गुजर नाले की कटिंग हो रही है, उसका जो अंदर मलबा वलबा गिरा हुआ, उसकी वजह से ब्लॉकेज है। हम CM मुराद अली शाह साहब और वज़ीर बल्दियात साईं नासिर हुसैन शाह साहब से वो उर्दू अपील करेंगे कि इसका जो काम है वो तेज़ी से किया जाए। बारिशें होने से पहले जो पॉइंट्स क्लियर कर दिए जाएँ, ताकि जो है ना ये गुजर नाले का पानी लोगों के घरों में ना घुसे और कोई बड़ा जानी और माली नुकसान ना हो सके गरीब आवाम का। कराची के बेशुमार बरसाती नाले KMC और DMC की गफलत के पेश नज़र चौक हो रहे हैं। अगर आने वाले वक्तों में हुकूमत की जानिब से जल्द कोई इंतजामात ना किए गए तो बरसात के दिनों में इसके नताइज कुछ और ही होंगे। सिंध के वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने हैदराबाद फिल्टर प्लांट, कासमाबाद सेवरेज 1 और 2 का दौरा किया है। वासा ने सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कासमाबाद 1 और 2 का काम 90% मुकम्मल कर लिया गया है। सूबाई वज़ीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला, अरकान सिंध असम्बली जाम खान शोरो, अब्दुल जब्बार खान, सेक्रेटरी बल्दियात सैयद नजम शाह, कमिश्नर हैदराबाद अब्बास बलोच, MD वासा दीगर के हमरा हैदराबाद फिल्टर प्लांट, कासमाबाद सेवरेज 1 और 2 का दौरा करते हुए वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि प्रोजेक्ट की तकमील से कासमाबाद में निकासी आप का मसला हल हो जाएगा। 10% काम मुकम्मल किया जाए, फंड्स जल्द जारी किए जाएंगे। उनका कहना था कि फिल्टर प्लांट को चलाया जाए। फिल्टर प्लांट की गुंजाइश 50 MGD रोजाना है, MGD रोजाना शहर की पानी सप्लाई किया जाता है। शहर की बढ़ती हुई पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मौजूदा गुंजाइश 50 MGD तक बढ़ाया जाए। सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पानी की फराहमी के लिए नई लाइनें भी डाली जाएंगी और पुराने फिल्टर प्लांट की मरम्मत का जो काम रहता है उसे मुकम्मल करके साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर बल्दियात ने नूरानी बस्ती, लियाकताबाद, काली मोरी, गन्नू शाला और दीगर इलाकों का भी दौरा किया और सफाई सुथराई का जायजा लिया। महकमे मौसमियात की जानिब से कराची समेत सिंध भर में बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र बल्दिया मलीर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर ज़ैनुल आबिदीन मिरानी की हिदायत पर बारिशों के दौरान और बाद में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कंटिजेंसी प्लान के तहत रेन एमरजेंसी टीमों की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं।
बल्दिया मलीर के दफ्तर में नए खरीदे गए सैनिटरी आर्टिकल्स का जायजा लेते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर ज़ैनुल आबदीन मीरानी ने कहा कि बल्दिया मलीर इंतजामिया बारिशों के दौरान और बाद की सूरत हाल से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। गुज़िश्ता मानसून बारिशों में भी आवाम को बल्दिया मलीर इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात फराहम की गई थी और इस मानसून सीजन में भी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर ने हिदायत की कि बरसाती सूरत हाल से निमटने और दौरान बरसात बिला तातुल बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर दस्तियाब मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत को अलर्ट रखा जाए। सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट, FLD डिपार्टमेंट, DNR, उन्होंने सबने अपने प्लान्स बना लिए थे। हमने बारिशों में जो मटेरियल यूज़ होता है, जो रेन कोट्स हैं और बाकी सारे वो प्रोक्योरमेंट कर दी है। हमारे डी वाटरिंग पंप सारे जो है ऑपरेशनल हैं। सिमिलरली जो हमारी मशीनरी है वो सारी रेडी है और स्टाफ को हमने पहले ही ब्रीफ कर दिया है कि कोई भी इस किस्म की अगर बारिश की सिचुएशन होती है तो हमारा स्टाफ जो है वो उस पानी को जो है वो कहीं पे रुकने नहीं दें। जैसे कि आपको पता है कि साइक्लोन में तेज़ हवाएं चलने की जो है वो पेश गोई थी, तो हमने एहतियातन अपने सारे साइन बोर्ड जो हैं वो लोकल टैक्स डिपार्टमेंट ने रिमूव कर दिए हैं ताकि किसी भी किस्म का कोई हादसा पेश ना आए। अब जैसे कि ये हफ्ता गुजर जाता है और हमें वेदर फोरकास्ट आती है तो फिर अकॉर्डिंगली फिर इस मौके पर डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट नदीम इकबाल मीरानी, असिस्टेंट डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट बल्दिया मलीर सलमान कादरी, डिप्टी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट नसीर अयूब, दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला कोरंगी इरफान सलाम ने मुतवक्की बारिशों के पेश नज़र अमले की छुट्टियां मनसूख करके तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला कोरंगी इरफान सलाम की हिदायत पर बल्दिया कोरंगी में खुसूसी सफाई मुहिम जारी है। म्यूनसिपल कमिश्नर जिला कोरंगी इमदाद अली शाह ने डायरेक्टर हेल्थ सलीम रजा के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और खुसूसी सफाई मुहिम का जायजा लिया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर इमदाद अली शाह ने कहा कि अब तक 10,000 टन कचरा उठाकर ठिकाने लगाया जा चुका है। बरसाती नालों की बहाली और रवानी के लिए इकदामात अमल में लाए जाएं। नशीबी इलाकों से बरसाती पानी की निकासी फौरी और हंगामी बुनियादों पर यकीनी बनाने के लिए डी वाटरिंग पंप्स और दीगर इंतजाम तैयार रखे जाएं। मरकजी और ज़ेली शाहराहों पर बिजली के तारों से टकराने वाले दरख्तों की कटाई और सेंट्रल आइलैंड के पौधों की छटाई अमल में लाई जाए। उनका कहना था कि बारिशों के दौरान अवाम की मुश्किलात के इजाले और उन्हें बल्दियाती बुनियादों पर फौरी रिलीफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कंट्रोल रूम फाल कर दिया गया है। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती डॉक्टर अली जैदी ने बारिश के दौरान सफाई सुथराई और नशेबी इलाकों से पानी की निकासी के कामों का मुआयना किया और बरसाती नालों से चोकिंग पॉइंट्स को अपनी निगरानी में साफ करवाया। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती डॉक्टर धारेजू की हिदायत पर म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी ने मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई और बारिशों के नतीजे में नशेबी इलाकों में जमा होने वाले बरसाती पानी की निकासी का काम का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सफाई सुथराई और कचरे की मुंतकिली के साथ साथ बरसाती नालों की सफाई और बरसाती पानी में निकासी में हाइल चोकिंग पॉइंट्स को भी अपनी निगरानी में दूर करवाया। नॉर्थ नाज़माबाद, नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती नालों की सफाई और नशेबी इलाकों में जमा होने वाले बरसाती पानी की निकासी को अपनी निगरानी में मुकम्मल कराया। म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली जैदी ने बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि आवाम को साफ और शफाफ माहौल की फराहमी करने में किसी भी किस्म की कोताही ना बरती जाए। हालिया बारिशों के दौरान आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए तमाम तर वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। मौजूदा बल्दियाती क़यादत आवाम को उनकी दहलीज पर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को मुमकिन बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। उनका मजीद कहना था कि जिला वस्ती के बरसाती नालों की सफाई का काम बरसात से कबल ही मुकम्मल कर लिया गया था, जबकि जिला वस्ती में कचरे की मुंतकिली का काम भी रोजाना की बुनियाद पर अंजाम दिया जा रहा है। यही वजह है कि बल्दिया वस्ती सफाई सुथराई के हवाले से दूसरे इजला में नुमाया मकाम रखती है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज़ के साथ।